So, hi Nishchal, Hello, congrats sir. for topping this exam, IES 2023. Although this is not a surprise for me because D school maybe also you did very good. Uh, so, please tell about yourself and then we'll start from there. Hmm. Sure, sir. Thank you so much, sir, for organizing this kind of talk. So myself, Nishchal Mittal, I am from Bayana, Bharatpur district of Rajasthan. My schooling was there from there only. After that, like in 11, 12, I actually prepared for joint entrance examination, but could not get the desired college and branch. So I decided to pursue Bachelor's of Science from Rajasthan University, and there I got this opportunity to have economics as one of the subjects. Hmm. So there I got this exposure and I developed the interest in that in economics, and I decided to pursue masters in this subject. And then I enrolled in EcoPoint as one of the guiding coaching, and there I cracked the Delhi School of Economics and other college entrance exam as well. So my master's is from Delhi School of Economics, and after that, I was praised as authorized officer in UPS. So I'm currently working there, and along the job, I have prepared for Indian Economic Service. So, I remember when I was checking your test for IES, I showed it to Aditya sir also. मैंने कहा मैंने इसको कहीं ज्यादा नंबर तो नहीं दे दिए सो आई थिंक आई रोट इन वन ऑफ द टेस्ट आल्सो मैं जितने भी नंबर दूं कट 10-15 मार्क्स अपने आप से Yes, sir. Right, sir. तो उसके बाद भी यू सेड इट इज कमिंग आउट अराउंड 95 98 और सो आउट ऑफ 200 Yes, sir. जनरली आई डोंट गो बियॉन्ड 110 इन Mhm. एनी ऑफ द पेपर किसी को भी मार्क्स इससे ज्यादा नहीं देता एंड यू रिमेम्बर यू कॉल्ड अप आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट आपने 20 में से 11 ही क्यों दिए हैं मैंने कहा Yes, sir. स्टार्ट 12 में स्टार्ट करता हूँ बिकॉज यू कांट गिव एवरीवन 18 18 19 19 but the tests were really good Mhm. and my I also wrote in one of the why I'm telling you these things is because these were there in my mind also when I was checking the paper तो मैंने उस समय भी ये लिखा भी था कि तुम टाइम में कर रहे हो और यू आर Mhm. डूइंग दिस एज एन असाइनमेंट so this question I want to know today also before I go on to the other question so you did those tests in time or you did them as an assignment because to me it almost looked like an assignment कि they were Okay. so perfect कि मुझे लगा ये तो ये कहीं देख के तो नहीं कर रहा and all this. So what was the truth now? Because now to everything is done, so you can tell the truth. Hmm. I think the truth is that I took these test series very honestly, and Hmm. I think because we have only I think 12 or 13 tests total, so it is required that we took them very honest and we give our honest review in there. So, sir, I applied the timer of 3 hours for every test, and I did that in 3 hours. But there were one or two questions which I missed. I couldn't attempt those questions. So what I did is that after that, like I just applied another timer, and then I did those two or three questions again in first paper especially, and then whatever I did, like there were only two or three questions that were beyond the time, but I actually removed them out of Hmm. my marks that I will not count. मेरे को ये अच्छा. कम marks नहीं count करने. So, but मेरे को ये था कि like if I will submit those question to you, then you will provide me some remarks there that. So See, that is something which I will get from that. So that's why I did it and I applied the timer. So I knew that okay ये question मेरे को नहीं count करना है मेरे marks में. Yes, sir. एंड ओवर द टाइम ऑल्सो मुझे ऐसा भी लगा कि आते आते जैसे फोर्थ पेपर आते आते यू वर ऑलमोस्ट राइटिंग जैसे मुझे चाहिए भी था शुरू में ही लिख दो सबसे पहले कि Mhm. व्हाट इज द मेन आंसर ऑफ द क्वेश्चन Right. and then you start writing it out because that's the way so I want to tell everyone कि भैया हमने भी डी स्कूल में मेनली यही सीखा है कि मुझे Mhm. अभी तक याद है अश्विनी देशपांडे मैम यूज्ड टू टीच इकोनॉमिक हिस्ट्री वो हमेशा ये कहती थी मुझे ना पहले पैराग्राफ में ठीक से आंसर दे दो Right. that I understand that you know the concept and then I will start because होता क्या है if we have to search an answer within an answer it becomes very irritating for the examiner. Right, sir. You Right. have to tell the answer to the question only which is asked. इधर उधर की बातें नहीं, nothing Right. at all. So that is the thing. So and this I liked also.
और उनमें अभी यू गॉट दी मार्क्स ऑल्सो, अभी नहीं आए? अभी नहीं आए सर मार्क्स सम एग्जाम के। टाइम। आई थिंक नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे। हाँ। एंड आई, दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो? यस, फर्स्ट अटेम्प्ट। This this is an icing on the cake. So ये अच्छी बात है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, इन दैट टू द फर्स्ट रैंक, राइट? सो व्हेन आई वाज चेकिंग द टेस्ट, तो मुझे ऐसा पता तो था कि रैंक तो है, कौन सी है नोबडी कैन प्रिडिक्ट दैट, is that nobody knows. अच्छा, now you tell about the books. So for example, we'll start from paper one. So which books you studied from? Sir, I analyzed past year papers for that. And I found out that for micro and macro, like microeconomics जो क्वेश्चन जो थे वो मोस्टली एच एल आहूजा में से थे। सो मैं एच एल आहूजा मैंने पकड़ के रखी थी, और वो मेरे ग्रेजुएशन में आई हैव ऑलरेडी रीड दैट, तो मेरे लिए आसान था उसको करना। सो मैंने इसलिए भी उस बुक को चूज किया था। अपार्ट फॉर देन कुछ अगर अदर टॉपिक्स थे तो वो वेरिएंस में उठा लेता था। और वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए आई थिंक वही ऑनलाइन से ही मटेरियल मिला मेरे को जितना मिला। एंड कुछ वेरिएंट में था, कुछ इधर उधर से सर पूरा मटेरियल मिला था। आई थिंक एक ब्लॉग भी है किसी मुझे गौरव अग्रवाल सर का है शायद, आईएएस से वो इकोनॉमिक प्रोफेशनल था, तो उनके उनके ब्लॉग से भी कुछ कुछ मिल जाता था। तो वहां से कुछ लिया। एंड फॉर इकोनॉमेट्रिक्स सर गुजराती बहुत अच्छे से हुई थी डीएससी में कवर। हम्म, तो वो बस मेरे लिए, मेरे को बस रिवीजन करना था उसके सेंस से, और वो आईएएस के सेंस से करनी थी उस चीज को। बाकी मैथमेटिकल सर मैंने नहीं प्रिपेयर करी थी ज्यादा, क्योंकि मेरे पे ऑलरेडी आती थी वो। हम्म। तो क्योंकि मुझे लगा कि जनरल इकोनॉमिक्स वन शायद उस टाइम पे लगा था मुझे को कि हो जाएगा ये, क्योंकि डीएससी मैंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। तो इसलिए वो काफी हेल्पफुल भी रहा, क्योंकि डीएससी का करिकुलम भी इसी तरीके का है। लेकिन तो जनरल इकोनॉमिक्स वन में ही मैंने कई बार देखा है कि हमारे डी स्कूल, जेएनयू और इन सब के बच्चों के नंबर कम आते हैं, बिकॉज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट इन जीई वन कि ये तो हो ही जाएगा। बिल्कुल सर, आई मेरे टोटली अग्री विद दिस। फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो कि जी हम्म। वन ये तो हो ही जाएगा, ये तो हाँ 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 हाँ। एंड बट सर जब इस साल थोड़ा सा। बिकम्स, तो पॉइंट इज टू मेक नोट्स प्रॉपरली, राइट, सो यस मेड सर। नोट्स थ्रू आउट। सर आई वाज हैविंग टाइम कंस्ट्रेंट सर। हम्म मैंने नवंबर में स्टार्ट किया था, एंड जी वन मैंने लिटरली सर मैंने जनवरी में ही उठाया था। तो हम्म मेरे पास ये था कि ऑफिस भी करना है, साथ में मेरे को पढ़ाई भी करनी है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा नोट्स रिगरस नोट्स बना सकूं। बट मैंने जो टॉपिक ऐसा था कि कहीं भी नहीं मिल रहे हैं, या फिर मुझे अगर मैं दोबारा आऊंगा तो मुझे बहुत लिखना ज़्यादा पड़ेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, तो उनको लिख लिया था। हम्म या फिर उनको कहीं से मतलब उनका मटेरियल बना लिया था, ताकि मुझे दोबारा रिवीजन करने के लिए प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत रिगरस नोट्स मैंने नहीं बनाए, क्योंकि बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट। एंड मैं वैसे भी नोट्स वाला पर्सन सर कम हूँ, मैं नोट्स कम बनाता हूँ। तो नाउ वो भी एक है। मैं यहाँ पे एक चीज जरूर कहना चाहूँ कि एवरी वन स्ट्रैटेजी इज डिफरेंट। यस सर, somebody who is a डेफिनेटली। topper, उसका हो सकता है अलग स्ट्रैटेजी हो। दिस कैनॉट बी अप्लाइड टू एवरीवन। कि अभी राइट। अगर सोचो कि मैं तो नोट्स बनाऊंगा ही नहीं, चले जाओ पेपर देने, सो यू विल कम टू नो लेटर ऑन। सो एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड देयर ओन स्ट्रैटेजी। द सेफेस्ट वे इज टू प्रॉपरली राइट। अगर अब अ, सबकी अपनी कैपेसिटी और लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी अलग अलग है, तो कोई ये सोचे कि क्योंकि किसी ने नोट्स नहीं बनाए तो मैं भी नहीं बनाता, वो तुम्हारे लिए है। आई मीन यू, एवरीवन इज एन एडल्ट हु इज गिविंग दिस पेपर, दे नो व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर देम। सो सर मैं ये आई हमेशा, थिंक बिकॉज हम जो भी बात कहते हैं, हम अगर यही बात कहें ना तो हमारी कोई बात नहीं मानेगा, बट somebody राइट। who has cleared the paper, वो ये कहता है तो उसकी बात मानेंगे। नाउ आई टेक सम अदर इंटरव्यूज ऑल्सो, उन्होंने बिल्कुल नोट्स बनाए हुए हैं, एंड somebody who has not made notes. So ये आपको अपने आप से जज करना है कि भैया आप कहाँ पे, I mean on what side are you? So you are the person who can just read books and write it, or you are the person who write it and then understand it better. So this cannot be applied to everyone generally. एवरीवन। ये एंड बिल्कुल सर सिंपल सी आई बात है। जस्ट आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट हियर। सो आई थिंक आपका इंटेलिजेंस लेवल कैसा भी हो, अगर आपके पास टाइम है टू राइट द नोट्स, यू शुड राइट इट। हम्म। बिकॉज एनी वे अगर आप लिख रहे हैं तो आपको लिखने का ही पेपर है ये। हाँ, अच्छी तरह आप समझ में आया। 1000 मार्क्स आपके लिखने के ही हैं।
सो हम्म। जब तक आप लिखोगे नहीं, यू विल नॉट बी परफेक्ट इन दिस, लाइक यू विल नॉट गेट परफेक्शन। तो नोट्स एक वे है आपका आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने का। हम्म। मेरे लिए टाइम कंस्ट्रेंट थे, इसलिए मैंने नहीं किया वो, और मैंने अदर वेज में अपना इम्प्रूव किया था, बट नोट्स बनाने चाहिए, आई थिंक आई वी शुड हाँ, मेक। तो मैं सिर्फ ये इसलिए इस पॉइंट को ऐड ऑन कर रहा हूँ कि अभी कुछ सोचे कि अब तो हम सीधे बुक से ही पढ़ लेंगे। हो सकता है कई जन ऐसा कर भी सकते हैं। राइट सर। हर एक का अपना लेवल ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग होता है। सबको अपने आप से सोचना चाहिए वेयर व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर अस, कि भैया करेक्ट। मुझे नहीं आता समझ में। अगर कोई मुझसे पूछे, सो आई थिंक आई राइट ऑल माई क्लासेस एंड देन आई डू। सो मैं राइट। ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज मेरा उतना इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है। सो आई राइट डू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, दूसरा, फॉर मैक्रो व्हाट यू डिड, फॉर विच बुक्स यू। सर, मैक्रो का अगर हम सिलेबस देखें तो मुझे लगता है सर, ऑल द टॉपिक्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, लाइक दे हैव गिवन इट इन चेन। तो पहले हिस्ट्री पढ़ो, फिर उसके बाद आप 18 पे आ जाओ, देन यू विल हैव मनी थ्योरी, एंड देन वो सारा का सारा एक फ्लो में चलता है। सो हिस्ट्री के लिए तो सर, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स में तो क्योंकि हम बाकी सारे स्कूल से इतने कर ही लेते, तो आई थिंक एक ये जो मर्केंटाइलिज्म है, ये एक ऐसा टॉपिक है, तो ये ऑनलाइन मिल जाते हैं। ये मैंने ऑनलाइन ही उठाए थे। ये बी एन घोष करके, ओके। ओके। बीएन घोष करके एक बुक है हाँ। हम्म। स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक थॉट की, लेकिन फिर वो भी बहुत बड़ी है। अब तुम्हारे को बहुत सारी, बढ़िया सर। उसमें से वो हम्म। टॉपिक उठा लो जो यस। टॉपिक हमारे काम का है। करेक्ट। हमारे कोर्स के अंदर भी मैंने बीएन घोष को ही लिया हो बिकॉज ओके। वही अच्छी बुक है और कोई उसके अलावा हाँ। नहीं। राइट। अच्छा, दूसरी चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, द वे दे हैव पुट इन इकोनॉमिक हिस्ट्री पहले, हम्म। वो स्कूल्स ना मैक्रो करने के बाद कंपैरिजन आना कंपेयर चाहिए। करने आना चाहिए। अब मैं पहले पॉइंट पे किनीजियन और मॉनेटरिज्म का क्या कंपैरिजन बता दूं कंपेरिजन जहां करूँ। किनीजियन और क्लासिकल अभी बताया ही नहीं है। सो राइट। दैट शुड हैव बीन थोड़ा आगे आना चाहिए आफ्टर डूइंग राइट मैथ। सो हाँ, या यू वर सेइंग। सर, एंड देन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो था, एक फ्रोयन करके बुक है। सो वहाँ से वी कैन डू, एंड इस पूरे प्रोसेस में एक ब्लैंकेट भी एक बुक है। तो आप दो तीन जो सब टॉपिक्स हैं, दे कैन बी कवर्ड फ्रॉम देयर। एंड बाकी कुछ पॉइंट आप एच लहूजा से भी ले उठा सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। तो ये वही है कि कहाँ से हमको कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा आ रही है, वहाँ से हम ले सकते हैं। फॉर इंटरनेशनल आई डिड दिस सेल्वेटोर पूरी तरीके से, तो आई थिंक वो पूरा पैकेज है वहाँ पे। बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए सर, डीएससी में एक कोर्स था हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो वहाँ पे रितिका गर्ग मैम ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई थी वो बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो मैंने वहीं से पूरा किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए। आई थिंक एक दो एडिशनल थे जो आपने क्वेश्चन पूछ लिए थे टेस्ट सीरीज में, तो मैंने वहां से पूरा आंसर उठा लिया था उनका। बाकी सर, जैसा आपने बोला कि हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट सबसे पहले क्यों है, बाद में होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि पूरा सिलेबस ही इस तरीके से है कि आपको वापस आना पड़ेगा चीजों पे। वो सर्कल है ये, इट इज नॉट ए सिंगल लाइन। तो ये आपको वापस घूमना पड़ेगा, कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा, इंटरनेशनल को मैक्रो से रिलेट करना पड़ेगा, आपको हर चीज को आपस में एक दूसरे से रिलेट करना पड़ेगा। जैसे मुझे मुझे फिर भी ऐसा लगता है उसमें अपने को ऐसे उसको रीड करना चाहिए, पहले नेशनल इनकम करो, फिर थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ये करो, राइट। उसके बाद फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स करो, हम्म। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड करो, फिर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स करो, एंड देन डू फाइनेंशियल मार्केट्स, एंड देन राइट। डू ग्लोबल डेवलपमेंट, और फिर हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। आई थिंक यस। दैट इज द पैटर्न इंस्टेड ऑफ द करेक्ट। पैटर्न गिवन इन द सिलेबस जिस तरह से दिया हुआ है। यस वो सर। पैटर्न उससे एक एक लीनियरली एक तरीके से समझ में आने लग जाएगा। समझ में आने लगा। दैट व्हाट आई थॉट। अच्छा, दूसरा, अब हमारे पास कौन सा है, पेपर थ्री। पेपर थ्री में यस, आई मैंने थिंक देखा नंबर कहाँ पेपर जा टू में डेवलपमेंट रह गया। डेवलप या। हाँ, तो डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, मतलब मुझे लगता है काफी मार्क्स देता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। सो उसको बहुत अच्छे से करना चाहिए। आई थिंक अगर आप लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम आप डेडिकेट कर पाओ इस चीज के लिए, आप इसके नोट्स बना पाओ प्रॉपर, दैट इज वेरी गुड। मैंने बनाए थे इसके नोट्स, क्योंकि ये काफी, वो लोग काफी पूछते हैं इस चीज को, और वो रियल लाइफ एप्लीकेशन भी पूछ लेते हैं कि करंट में क्या एप्लीकेशन हैं, तो हाँ, वो इंटरव्यू में भी पूछ लेंगे आपसे। तो ये चीज ऐसी है जो आप प्रिपेयर करोगे, आपके पास टाइम है, दैट इज वेरी गुड, कि आप काफी अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे, लाइक यू कैन डेफिनेटली गेट 30 मार्क्स और 40 मार्क्स इन जी टू पेपर। सो आई थिंक ये कुछ है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जी टू पेपर। इसमें एक चीज और लगती है, जैसे डेवलपमेंट के अंदर या फिर इंटरनेशनल में, डेवलपमेंट में किसी में भी, जैसे उन्होंने बैलेंस्ड अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी के बारे में कुछ पूछा यस। है। सो ट्राई टू थिंक के क्या ये जो बैलेंस ग्रोथ की जो assumptions थी और जो कंक्लूजन है, क्या वो इंडिया पे अप्लाई हो रहा है हाँ। या वो इंडिया पे अप्लाई नहीं हो रहा है।
राइट। सो एक ये एक्स्ट्रा चीज अपने आप से वो करने, वो किसी बुक में एज सच शायद नहीं गिवन होगा, हम्म। यू विल हैव टू थिंक इट योरसेल्फ कि इज राइट। दिस अप्लाई टू इंडिया, ये क्या इंडिया पे अप्लाई हो जाएगा। ऐसी इंटरनेशनल ट्रेड की भी, जैसे उन्होंने कह रहे हैं कि कंपैरेटिव एडवांटेज में सिर्फ पूरी की पूरी स्पेशलाइजेशन है, क्या इंडिया में ऐसा हो सकता है पूरी की पूरी स्पेशलाइजेशन, और व्हाट कैन बी डन, कौन सी थ्योरीज अप्लाई, राइट। थोड़ा सा बाद में सोचने का है कि वंस यू हैव डन ऑल द थ्योरीज। और राइट। जैसे कभी डिफरेंस पूछा जाए तो हाउ डू यू राइट दैट, बिकॉज ये क्वेश्चन इवन मैं भी पूछता हूँ, और आई हैव आस्क्ड अदर पर्सन्स ऑल्सो जिन्होंने क्लियर करा हुआ है। सो आई टेल यू व्हाट दे सेड एंड यू व्हाट, सो हाउ डू यू राइट द डिफरेंस। सर फॉर आई टेल मी आई थिंक, यू। सो सर आई थिंक वो पहले तो जिस चीज का डिफरेंस करना है उन चीजों के बारे में बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि कौन से पॉइंट पे है। और आई थिंक हमारा लाइक सेंटर ऑफ द आंसर ये होना चाहिए कि कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो एक सिंगल लाइन है बट दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। तो अगर आप उन पॉइंट्स को कंपेयर कर पाओगे then पहले तो वो चीज है कि आपको कंपेरिजन करना है ना, हाउ टू राइट दैट कंपेरिजन। सो जनरली पीपल डू दिस लाइक वो सिंगल लाइन बीच में ड्रॉ करके एंड देन दे डू दिस साइड बाय साइड। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द गुड वे, वन ऑफ द बेस्ट वे, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट एग्जामिनर को मिल जाएगा कि हाँ ये इस तरीके से करना बिल्कुल। है। बट इन सम क्वेश्चंस यू कैन आल्सो नीड लाइक यू नीड टू डू दिस की पैराग्राफ टर्म्स में करना पड़ेगा कि कुछ टीम, बट वो अवॉइड करना चाहिए जनरली। मुझे जैसे अब कई बार आंसर्स आते हैं ऐसे कि क्लासिकल, पूरा क्लासिकल को आपने लिख दिया, उसके बाद फिनिशिंग पे पूरा, अब उसके बाद मैं ढूंढूं कि डिफरेंस क्या था। डिफरेंस क्या है, वो नहीं चाहिए। वो नहीं होगा। मतलब उनको पॉइंट टू पॉइंट ही करना, अगर पैराग्राफ में भी लिखना है तो भी पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना है कि राइट। वेज फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, एग्जैक्टली सर, इसके एग्जैक्टली। लिए क्या कह रहे हैं, वो क्या। ये नहीं करना है मुझे कि किनीजियन का एक पैराग्राफ दे दिया, क्लासिकल का हम्म। एक पैराग्राफ दे दिया, दिस इज नॉट गोइंग टू फेच मार्क्स। और राइट। यही वो लोग भी देखते हैं, आप कुछ भी लिख के आ जाओगे उसके मार्क्स नहीं है। राइट। सो यू नीड टू राइट व्हाट नीड्स टू बी रिटन। अच्छा दूसरा, अच्छा एक चीज, आई मीन यू हैव डन डी स्कूल आल्सो, यू हैव गिवन डी स्कूल एंट्रेंस आल्सो, यू हैव गिवन आईईएस आल्सो। मेरा अपना मत है, ये मुझे ऐसा लगता है कि उधर एक लेवल ऑफ, यहाँ पे हार्ड वर्क ज्यादा चाहिए हम्म। आईई। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर आपको ज्यादा क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है, मुश्किल नहीं है, हम्म। ह्यूज कोर्स। डी स्कूल के अंदर कोर्स इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल है। सो यहाँ पे ये है कि एनीवन कुड क्लियर इट, बट द पॉइंट इज यू हैव टू गिव इन टाइम टू दिस। यस सर। दिया नहीं दिया वो बात अलग की बात है, बट नॉट एवरीवन कैन बी कंपेयर्ड विद एवरीवन, ये है। राइट। तो एग्जैक्टली सर। ये चीज है। अच्छा और क्या था, ट्रेड के लिए मैं तो क्रूगमैन यूज करता हूँ, आई डोंट हम्म। यूज सैल्वाडोर अर्लियर, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल विद क्रूगमैन। एंड ओके मोस्ट, वैसे एक बात बताऊँ, सारे टॉपिक्स ना सारी बुक्स में गिवन होते हैं, यू हैव टू सी सर, व्हाट कंफर्टेबल विद। एक दो टॉपिक्स थे जो क्रुगमैन में अच्छे से नहीं दिए हुए। एक ऑप्टिमल टैरिफ वाला एक टॉपिक है, टैरिफ का है, वो टॉपिक नहीं था क्रुगमैन में, एंड वो बट एक। पता नहीं पूरी बुक उसके लिए, बिकॉज मैं इसलिए कह रहा हूँ ये डीयू के बच्चे जो हैं, हम सब हमने पढ़ा भी क्रूगमैन से ही है, पढ़ाया भी क्रूगमैन से, इट्स बिकम्स इजियर फॉर अस टू कनेक्ट विद। हाँ। तो यस। मुझे लगता है कोई क्वेश्चंस अगर अलग से आए हुए हैं तो वो टॉपिक देख लो, अदरवाइज हम्म। यू कंफर्टेबल विद विच एवर बुक। कोई ये मत सोचो राइट। कि अम, इस बुक से कर लेंगे तो हो जाएगा, बुक का कोई लेना देना नहीं है, यस सर। भी समझना है, और हम्म। तुम्हारे को नोट्स बनाते हुए उसको आगे बढ़ना है, जो भी। अच्छा व्हाट अबाउट पेपर थ्री, पेपर थ्री में तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। पेपर थ्री आई थिंक मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट थिंग थी, आपसे मैं पूछ भी रहा था ये बार बार कि कैसे करनी है ये। सो फॉर इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में मेरे को नहीं मिल रही थी चीजें। कोल स्टेट बुक है एक, एंड यू हैव आल्सो सजेस्टेड दैट, बट वहाँ पे चीजें काफी लाइक वो ढूंढनी पड़ती हैं कि ये यहाँ पे, ये यहाँ पे है। एंड मेरे लिए इशू ये था, मेरे पास टाइम कंस्टेंट था काफी ज्यादा, तो मैंने कोल स्टेट से जो मिला वो देखा साथ में, क्योंकि आज के टाइम पे टॉपिक है क्लाइमेट चेंज वगैरह, तो जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं यू विल हैव टू कीप थिंग्स ऑन इट। एंड राइट, राइट सर। And I think for public economics, I was having this topic in my DSE as well as a course. और ये मैंने मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे भी पढ़ा था। मुझे अभी उस बुक का नाम याद नहीं आ रहा है, बट वो एक बहुत ही निखिल भाटिया। एच एल भाटिया, यस, एच एल भाटिया एक बुक है।
सो वो एक बुक थी, काफी लाइक उसमें काफी चीजें मिल गई थी मेरे को, और आई थिंक पब्लिक इकोनॉमिक्स मिल जाती है आपको का, वो आपको मुझे मुझे फिर भी लगता है कि अपने को ऐसा नहीं है कि एच एल भाटिया पूरी करनी है, हाँ हाँ वो या नहीं करना है। कोई भी इस हम्म, बात से ना घबराए कि भैया मेरे को तो हम्म, एच एल भाटिया पूरी करनी है या फिर मुझे कोलस्टैट पूरी करनी है। यू हैव टू सी व्हाट टॉपिक्स आर राइट, देयर इन द सिलेबस और उसके अराउंड अराउंड क्या क्वेश्चंस पूछे हैं उन्होंने, यस, एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग नोट्स और वट एवर यू वांट टू रीड राइट, अराउंड दैट। मुझे, मेरा अपना ही मत है, पूरी बुक पढ़ने मत बैठ जाओ, क्योंकि राइट, ऐसा नहीं है कि वो रैंडमली कुछ भी पूछने लग जाएंगे। राइट, जो राइट, नहीं है सिलेबस में वो जनरली नहीं पूछते। आगे कुछ पता नहीं, यूपीएससी इज यूपीएससी व्हाटएवर। यूपीएससी, फिर हमारे पास एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की एक बुक आती है बर्तवाल की। आई थिंक मैंने यस, तुझे भी बताई थी, हाँ बर्तवाल हाँ, बर्तवाल करके। अदरवाइज डी स्कूल में तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स है, इंडस्ट्रियल हाँ ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे है। तो आइडिया एंड है। majority of the portion of industrial economics in covered in G1 as well. माइक्रो माइक्रो में ही हो गया है वो। तो हाँ, तो काफी कुछ वहां से हो जाता है, और आई थिंक बहुत कम टच करते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स को जनरली। इस साल उन्होंने एक दो न्यूमेरिकल पूछ लिए, तो वो भी न्यूमेरिकल था। वो आई थिंक न्यूमेरिकल वो कैटलॉग वगैरह का ही था तो वो हो जाता है। हाँ हो जाता है। तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पे इतना फोकस है नहीं अब, इस साल कर दें तो पता नहीं, बट अभी तक तो नहीं था पास्ट ईयर्स को आप देख के। कर, बिकॉज हम्म, क्या इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स यस सर, चले जाए ऐसा कुछ। सो हाँ, जो भी सिलेबस में जो भी वर्ड्स दिए हैं हम्म, उनके बारे में मेरे पास कुछ अमाउंट होना चाहिए, एग्जैक्टली सर, दैट एवरी इज। डायमेंशन। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स करके नहीं गया बिकॉज टॉपर ने कह दिया। नो सर, मैं नहीं, इस चीज का बिल्कुल नहीं है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स मेरे लिए थोड़ा सा इजी इसलिए हो गया था क्योंकि डीएससी में था ये टॉपिक, और क्योंकि काफी सारी चीजें थी जो ऑलरेडी पता थी, तो वो पढ़ लिया था वहां से, जैसे बर्थवाल सर से, बर्थवाल की लेकिन बुक से पढ़ लिया है, और कुछ भी लेकिन डी स्कूल में ना वो बहुत मैथमेटिकल करवाते हैं, बहुत मैथमेटिकल है। लेकिन अपने को क्योंकि इंट्यूशन पता है तो वी कैन रिलेट टू इट और हम आसानी से यस, लिख सकते हैं यस, उस। हमारे को यहाँ पे इतना मैथमेटिकली नहीं लिखना अनलेस दे आस्क यू कि राइट, भैया वो वाला पर्टिकुलर मॉडल ही बताना है तुम्हारे को, सर्कुलर राइट, मॉडल ही बताना है। मुझे ऐसा लगता नहीं है पूछेंगे, पूछ ले तो भैया पता नहीं, बट के जैसे सर्कुलर सिटी मॉडल को डिराइव करो, दे कैन राइट, आस्क इन ये लोकेशन एग्जैक्ट, के अंदर वो पूछ सकते हैं, बट राइट अभी तक तो नहीं पूछा। आगे दे कैन आस्क वट एवर सर। दे वांट। I think over the like last 1 or 2 years they are asking new things in the paper, like वो पहले अब पेपर क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहे हैं। ये ऑब्जर्व किया जा सकता है। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में दे आस्क लाइक ये रिवील प्रेफरेंस थ्योरी का एक क्वेश्चन पूछ लिया था उन्होंने कि जो वैल्यू होता है, अब वो आज तक नहीं पूछा गया है। तो एंड इन द सेम सेंस अभी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये टॉपिक अभी तक टच नहीं किया है इन लोगों ने इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में, बट इट इज ऑल्सो गुड टॉपिक। मुझे जहां तक याद है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करा है किसी साल के अंदर, बट लोकेशन उसका सर्कुलर सिटी का करा है कि नहीं, इवन लीनियर सिटी का भी नहीं करा है। नहीं ऐसे ठीक, अभी नहीं, वही वही सर, प्रोडक्ट वही। डिफरेंशिएशन शायद एक तो न्यूमेरिकल आया है, हम्म, डायरेक्ट डिमांड यस फंक्शन सर, P1 हम्म, P2 उसमें वो आया हुआ है, अदरवाइज ये नहीं आया कि उसके, लेकिन आई मीन बिकॉज वो इट इज नए वेरी नए। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज वेल, सो लाइक वो काफी चीजें मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उसको समझना भी। तो कभी कभी ये भी एक डिसएडवांटेज होता है ऐसे टॉपिक्स के साथ कि वो होते इंपॉर्टेंट है बट वो डिफिकल्ट भी होता है। एंड इफ यू लुक एट इट, जैसे 2018 से देखने चालू करें इनके पास्ट ईयर्स को, हम्म, तो दे हैव इंक्रीज द लेवल स्लोली एंड ग्रेजुअली। हम राइट, अगर 2015 से पहले के पेपर देखें तो वो काफी आसान है काफी आसान होता एज कंपेयर टू व्हाट दे आर आस्किंग राइट है, नाउ। तो वो धीरे 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 लेवल बढ़ाते चले जा रहे हैं इसका। एग्जैक्टली सर, आई थिंक दैट्स ट्रू फॉर एनी पेपर। राइट, बताइए, जैसे यूपीएससी के अंदर भी उन्होंने, आईएएस के अंदर भी कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स राइट, और थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस पूछने लगे हैं। अच्छा, आई हैव वन फीलिंग, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन आईएएस के पास्ट ईयर्स और नॉट, और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल देखे हैं नहीं देखे? सर देखे थे, बट मेरे को पर्टिकुलरली मेरे को लगा, ये मेरी फीलिंग थी कि काफी आईएएस के जो भी वो पास्ट ईयर में पूछ रहे हैं और जो ईएस के में पूछ रहे हैं, इनमें थोड़ा डिफरेंस है, दे आर नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड। तो अगर आप ये सोचो कि आईएएस के पास्ट ईयर भी कर ले जाऊं, उससे मेरे को आईएएस में हेल्प हो जाएगी, मुझे लगता है कि बहुत हेल्प करेगा वो चीज। बट आपको आइडिया लग जाता है कुछ टॉपिक्स का, इफ यू हैव लेफ्ट सम टॉपिक, सो यू विल गेट एक, आई थिंक मैंने ऑब्जर्व किया कि इस साल आईएएस में क्वेश्चन आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो आईएएस के रिपीट उसमें ऑप्शनल में भी कुछ पूछा है इसी साल, सेम क्वेश्चन। सो आया हुआ है कुछ इस, हम्म,
इस साल का तो नहीं याद है, लेकिन 2014 में शायद या तो आईएएस में ऑप्शनल में आया है, और उसके बाद 2015 के आईईएस में आया हुआ है, दे एग्जैक्टली। आस्क्ड। याद लेकिन दिस। वो शायद कुछ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का कोई क्वेश्चन था, दे हैव हम्म। आस्क्ड। अच्छा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि आईएएस में जो क्वेश्चन बनाने की पद्धति है, जिस तरह से जो हम्म। लेवल क्वेश्चंस है, वो ज्यादा इंट्यूटिव है। कई बार हाँ, ना देखने में ज्यादा मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है। आईईएस के अंदर उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते हैं, लेकिन वो हम्म। कई ऑफ टॉपिक पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क यू समथिंग वेरी सर ऑफ आई टॉपिक। थिंक आप जब आंसर लिख रहे हैं ईएस में, तो यू शुड लुक लाइक ए एक्सपर्ट इन योर आंसर। आप आईएएस में उनको एक्सपर्ट नहीं चाहिए इकोनॉमिक्स का सच की वो स्पेसिफिक स्पेशल पर्सन हो, बट ईएस में उनको स्पेशलिस्ट चाहिए। आई डोंट एग्री विद दैट लेटर पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट कि आईएएस में उनको ऐसा एक्सपर्ट नहीं चाहिए। हाँ, मे बी बिकॉज द एलिजिबिलिटी इज ओनली बीए, हम्म। but still the kind of the questions which they are asking, they still want a very good answer which can be given by an expert in the subject. Expert in the subject doesn't mean somebody who's teaching it, but somebody who has एग्जैक्टली सर। very deep, as लाइक a student. if you have some, I can just explain this in an example. अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाँ, बट अब नाउ अगर मैं आईएएस के एग्जाम में बैठा हूँ, ईएस के एग्जाम में बैठा हूँ, तो आंसर शुड बी लुक्ड क्वाइट डिफरेंट। वो हाँ, काफी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, काफी अच्छे से इसको समझाना पड़ेगा। सो वो एक चीज है जो कि आई थिंक ईएस में थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन बट अगर हाँ। हम अगर आईएएस के पेपर में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा उनको बता देंगे, then the examiner also will feel good, एग्जैक्टली सर। उनको अच्छा ही लगेगा। सो और पता नहीं आई डोंट नो हम आईएएस पे क्यों बात कर रहे हैं, बट आईएएस पे भी मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एलिजिबिलिटी तो बीए की दी है, लेकिन कई बार ना जो क्वेश्चंस का लेवल है, वो कुछ कुछ एमए से रिलेटेड आ जाता है। हाँ, आई यस हैव सर, सीन आई दिस, टोटली अग्री। कि वो कुछ कुछ एमए से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं उसके। अच्छा, दूसरा, इंडियन इको के लिए क्या करा, बिकॉज दिस इज वन थिंग जो बहुत सर पूछा जाता आई थिंक वन ऑफ द डिफिकल्ट थिंग इज इंडियन इकोनॉमिक्स। सो मैंने मिशन पूरी पकड़ी थी, कुछ उमा का पीला भी देखा था, बट प्रॉब्लम विद दीज बुक्स दे आर स्टैटिक। वो स्टैटिक पोर्शन आपको कवर करा देंगे, बट मोस्टली नाउ इट इज बिकम डायनामिक क्वेश्चन पेपर जो है। तो यू नीड टू बी लाइक, आपको जो भी टॉपिक है, जैसा कई आईएएस के जो टॉपर्स, इफ यू हैव हर्ड देम, दे आल्सो सो दिस कि आप एक टॉपिक को पकड़ो, उसकी डिफरेंट डायमेंशंस को पकड़ो, आपको उसी तरीके से इसको कवर कर सकते हो। चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर आपको ना मिश्रणपुरी में मिलेगा, ना वहाँ कपी में कपिला में मिलेगा, बट अगर तुम चाइल्ड लेबर के डिफरेंट डायमेंशंस को पकड़ लोगे, जैसे लाइक व्हाई इट इज हैपनिंग एंड व्हाट आर द रीजंस एंड ऑल, अगर डायमेंशंस आप पकड़ लोगे, देन यू विल हैव वेरी गुड अमाउंट ऑफ मटेरियल। एंड अगर आप यहाँ पे नोट्स बना सको, तो दैट इज वेरी गुड, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक्स में रियली यू नीड नोट्स। सो है। इंडियन इकोनॉमी की कोई एक पर्टिकुलर जगह तो नहीं है जहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, मेरा इसमें एक, जैसे और भी बच्चे सुन रहे होंगे इस इंटरव्यू को, मुझे इसमें ऐड ऑन ये करना है, जैसे मान लो इसने चाइल्ड लेबर कहा, हम्म। जहां तक मुझे ध्यान है शायद मिश्रा एंड पुरी उसमें कहीं कुछ तो गिवन है, चाइल्ड लेबर और हम्म। बॉन्डेड लेबर इन सब के बारे में। लेकिन अपने को क्या करना है, एक चीज और ऐड करने के लिए, देखो, बिना स्टैटिक पढ़े तुम डायनेमिक पढ़ोगे, उसका हाँ, कोई सेंस नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा। राइट। तुम्हारे को पता तो होना चाहिए चाइल्ड लेबर के कॉजेस क्या हैं, क्यों हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं। उसके बाद भैया सबको, हमको भी ऐसी नोट्स बनाने पड़ते हैं पढ़ाने के लिए, राइट। कि तुम्हारे को जाके क्या करना है। तुमने पहले स्टैटिक के लिए, स्टैटिक वैटिक पता नहीं क्या होता है ये सब, लेकिन जो भी बुक में गिवन है, मान लो उसको मैं स्टैटिक कह रहा हूँ, तो वो चीज है वो अपने को आनी चाहिए। उसके बाद गूगल में जाओ एंड हम्म। जस्ट टाइप चाइल्ड लेबर, उसकी न्यूज के पे क्लिक करो, और जो पहली कुछ न्यूज आ रही हैं, जो भी रेलेवेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं, उनमें से कुछ पार्ट ले लो, कि भैया हाँ अच्छा, गवर्नमेंट ने शुरू शुरू में ऐसे ऐसे कुछ कुछ करा है, विल हैव सम डेटा पॉइंट रिलेटेड टू राइट। दैट। अब जैसे राइट। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी है, कुछ है, तो हमने पहले पढ़ा कि मिश्रा एंड पुरी में, उमा कपिला में क्या गिवन है, उनके शायद कोई पेपर अगर कुछ हो तो वो पढ़ लें। उसके बाद जाओ गूगल पे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, इज इट वर्किंग, ऐसे करके न्यूज में देखो, न्यूज आर्टिकल्स में, और वो भी जो ओपिनियटेड आर्टिकल्स हैं एडिटोरियल के, उधर से कुछ पॉइंट मिल जाएंगे। दैट यू राइट। हैव, ये है डायनेमिक को करने का तरीका। करेक्ट। हमारे पास भी एंड क्वेश्चन, ये डायनेमिक कैसे न्यूज़पेपर कैन आल्सो बी हेल्पफुल इन दिस।
आई सॉरी, थिंक न्यूज़पेपर्स भी काफी हेल्पफुल हो सकता है आपको, वो न्यूज, रेगुलरली रीड करना है, वो दैट्स व्हाट आई, रेगुलरली रीड। हम्म। न्यूज ही तो कह रहा हूँ कि न्यूज यू हैव टू रीड। करेक्ट। लेकिन अब होता क्या है कि हमारे को ना जीएस की तरह से नहीं करना है इसको। तो मैं राइट। बहुत ज्यादा ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे को हर रोज, हाँ न्यूज़पेपर का ये कर तुम कर लो कि एडिटोरियल पढ़ लो। हम्म। अच्छा, हर सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर ना वो इकोनॉमी का एडिटोरियल अलग 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 देते हैं, जो हम्म। इकोनॉमिक टाइम्स है या हिंदू बिजनेस लाइन है। तो उसमें इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, सर्विसेज का कुछ कुछ होगा, सिर्फ वो राइट। एडिटोरियल वाला पार्ट पढ़ लो। तुम्हारे को ये पढ़ने की जरूरत नहीं है कि सेंसेक्स कितना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये सब उसका चीजें तो not वही। important for us, हम्म। हमारे पेपर के लिए। लेकिन और किसका मर्जर हुआ किसका नहीं, तुम्हें पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन मेनली हमारे पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो सेक्टर्स के। एग्जैक्टली। तो राइट। दूसरा एक तो ये मैं कह रहा हूँ कि डायनामिक इज समथिंग जो ये अपने आप से भी डायनेमिज्म अपने लाना आप से। पड़ेगा राइट। कि यू विल हैव टू सर्च फॉर थिंग्स। लेकिन ये नहीं कि तुम सारा टाइम सिर्फ न्यूज आर्टिकल्स को ही ढूंढने में लगे हो अब ये पता नहीं राइट। क्या हुआ है, तो कुछ नहीं होगा उससे, नथिंग इज गोइंग टू हैपन देयर। सो राइट। इंडिया समथिंग विच इज रियली चेंजिंग एंड इट विल चेंज थ्रू आउट, वो हमेशा चेंज करेक्ट। होता रहे। तो उसके लिए भी मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा अपना रूल ये है कि हर वर्ड का जो भी सिलेबस में गिवन है देयर शुड बी अ नोट। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई राइट। वर्ड गया, बिकॉज वो पूछ हम्म। के नहीं सकते। उन्होंने बताया एक साल में एक छोटा सा वर्ड गिवन है, टैरिफ पॉलिसी, पॉलिसी। 15 मार्क फ्रॉम देयर। तो यू हैव टू कवर एवरीथिंग उसके अंदर। तो करेक्ट सर। इंडियन उमा कपिला से कुछ कुछ पढ़ा था। एंड हाँ सर, ओमा। हम्म। मैं इसको ये कहता हूँ कि तुम कोई भी बुक उठाओ, बट हम्म। उठाओ एक ही बुक। एक ही बुक। राइट। तुम्हें 15 बुक्स नहीं उठा सकते। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, what has worked for one person, it is not necessary that it will work for the other person also. एवरी पर्सन। राइट। So don't generalize it. हो सकता है किसी को सिर्फ एक बुक से ना आए समझे, तो वो अलग बात है। बट मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये ना सोचे कि मैं तो ये 15 बुक्स कर लूंगा, 15 बुक्स करके कुछ नहीं होने वाला। आई मीन यू डू वन बुक कंप्लीटली। एंड ओवर द टाइम आई थिंक सर, लाइक जस्ट एडिंग वन मोर पॉइंट, ओवर द टाइम यू गेट टू नो कि ये बुक ठीक है या नहीं है। बुक तो ठीक है क्या? जैसे मैंने उमा कपिला उठाई थी, और मैंने एफटीए का उसमें आई थिंक उसका एफडीआई का उसमें देखा था टॉपिक। उसमें काफी पुराना पोर्शन दिया हुआ है कि एफडीआई का पहले क्या था। तो जब मैंने वो पढ़ा तो मैंने उसके नोट्स भी बनाए एफडीआई के रिलेटेड, लेकिन बाद में मेरे को ओवर द टाइम पता चला कि दिस इज नॉट यूजफुल, ये यूजफुल नहीं था उमा कपिला के सेंस में। देन आई अंडरस्टूड कि बहुत ज्यादा स्टैटिक भी नहीं करना है। तो ओवर द टाइम यू गेट टू नो कि कौन सी बुक आपके लिए ज्यादा बेटर है और आपको किस तरीके से करना है। तो हो सकता है आपको लगे कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, बट इट नॉट वेस्टिंग टाइम, इट इज जस्ट दैट यू अंडरस्टूड कि क्या आपके लिए ठीक है। तो इसमें ये एक भी और एक चीज है। बातों बातों में याद आ रहा है, जैसे इसके अंदर ही जैसे तूने एफडीआई के लिए कहा, तो आई थिंक इफ आई वाज अ स्टूडेंट तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि अब उमा कपिला ने हमारे पेपर के लिए बुक नहीं लिखी है मैम ने, राइट। उन्होंने करेक्ट सर। लड़कों के लिए लिखी है। मिश्रा एंड पुरी राइट। साहब ने हमारे लिए नहीं मतलब नहीं लिखी लिखी। उन्होंने। वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज हो जाती है, बट वो हमारे लिए नहीं लिखा। हमारे को उसको यूज एग्जैक्टली। कर, अब हम कैसे कर करेक्ट। सकते हैं? जैसे एफडीआई का ही सेट दिस, तो हम सबसे पहले अपने दिमाग में 5 क्वेश्चन सोचें कि क्या हो हम्म। सकता है। व्हाट इज एफडीआई? हम्म। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एफडीआई ओवर द राइट। आई मीन आफ्टर रिफॉर्म्स? ये ढूंढो उसमें से। उसके बाद व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लो और हाई एफडीआई इन दीज पीरियड्स? तो अपने राइट। आप ही सेटिंग स्टार्ट हो जाएगी कि तुमको कैसे 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 सोचना है। किसी भी प्रॉब्लम के लिए इंडियन इको में देर आर 2 3 थिंग्स विच आर नीडेड। वन, व्हाट आर द कॉज ऑफ दिस? जैसे चाइल्ड लेबर का कॉज क्या है? व्हाट आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज विच आर रिक्वायर्ड एंड व्हाट सजेशंस यू विल गिव? राइट। ये तीन अगर तुम्हारे पास है ना, तो इंडियन इको इज मोर और लेस डन। यस। ये ये करना पड़ेगा। टोटली अग्री सर। ये सोचना और इसको करना, इसमें बहुत दोनों अंतर। फर्क, बहुत अंदर है अरे हाँ, अच्छा अच्छा, इन्होंने तो ये बता दिया ऐसे कॉज और वो करो। इट विल टेक सर। लॉट ऑफ टाइम कि यस सर। उसका उसके सॉल्यूशन और उसकी सजेशंस ये होना राइट। ही चाहिए उसके अंदर इंडियन इको। दिस इज द करेक्ट वे। सर। बट ना आई और थिंक इंडियन इकोनॉमिक्स को सर ऐसे ही करा जाता है कि आपको हर टॉपिक, एक टॉपिक की बहुत सारी डायमेंशंस हो सकती हैं। अब सर इसी साल फॉर एग्जांपल 1991 की जो लिबरलाइजेशन हुआ उस पे एक क्वेश्चन पूछा, क्रिटिकल एनालिसिस कर दो इसका इन टर्म्स ऑफ लाइक इसको इनइक्वालिटी से रिलेट करके। नाउ इफ समबडी इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि 1991 लिबरलाइजेशन है वो है, तो ये चीजें, ये डायमेंशन जो है आपको सभी समझ में आएंगे जब आप बहुत सारे डायमेंशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, देन ओनली यू कैन आंसर दिस। इसके अंदर
पास्ट ईयर्स का क्या रोल है? सर बहुत ज्यादा था आई थिंक, क्योंकि वो आपको उससे पता लगता है कि एक तो डायमेंशंस का पता लगता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, और क्या एक्सपेक्टेशन है, और कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ सकती है इन एग्जाम हॉल। क्योंकि आपको घर पे आप कंफर्ट जोन में है, बट एग्जाम हॉल में यू विल हैव प्रेशर कि मुझे 10 मिनट्स में क्वेश्चन आंसर करना है, मुझे 5 मिनट्स में क्वेश्चन आंसर करना है। तो उस केस में आपको लाइक वो आइडिया तभी लगेगा व्हेन यू विल डू द पास्ट क्वेश्चन पेपर सर। अब जैसे इस निश्चल ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि पास्ट ईयर से वो नए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो उसमें से नहीं रिपीट करे। इसका मतलब ये नहीं है कि पास्ट ईयर्स नहीं करने। इसका यस मतलब ये कहीं नहीं है। सो इट डजंट मीन कि हम पास्ट ईयर्स ना करें, क्योंकि वो तो क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे। वो क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे, लेकिन उनका जो ट्रेंड है पूछने का वो मोरलेस वैसे ही रहेगा। राइट। उनका जो तरीका है पूछने का वो मोरलेस आपको कहाँ से समझ में आएगा? वो वहीं से समझ में आएगा, और कोई तरीका नहीं है। सो पास्ट ईयर्स तो मुझे लगता है भैया 2018 या 19 के बाद वाले तो होने चाहिए। इट शुड होने बी डन। चाहिए। पूरे राइट ना भी लिखो, at least सिर्फ स्ट्रक्चर लिख लो। राइट राइट। डोंट राइट द एंटायर क्वेश्चन आंसर। अगर लिख सकते हो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट स्ट्रक्चर लिख लो। मुझे याद है एक बच्चा था, शायद आईएएस का टॉपर था, उसने ये कहा था कि जीएस के लिए मैंने 1000 क्वेश्चंस लिखे थे। हम्म, तो अगर वो 1000 क्वेश्चंस या उससे भी ज्यादा कुछ लिखे थे उसने, हम सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं कर सकते कि हमने टेस्ट सीरीज में वो कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं तो वो आसान, वो इनफ है हमारे लिए। हमको वो लिखने ही पड़ेंगे, बिकॉज ये राइट। लिखा का ही पेपर है। तो ये बिना लिखे नहीं होगा। तो ये लिखने लिखने का ही पेपर है। लिखने का ही पेपर, यू हैव टू राइट इट। चल, मुझे तो लगा ये हम दोनों ने कुछ ज्यादा बातें करी हैं, इंटरव्यू तो पता नहीं क्या, जस्ट टॉक विद ईच अदर। सो अच्छी बात है। एंड अच्छा, वो वन अदर क्वेश्चन विच आई जनरली आस्क इज व्हाट आफ्टर दिस, आई मीन विल यू गिव सिविल सर्विसेज और यू विल सर व्हाट? लास्ट like it is my personal feeling, last 4 to 5 years have been very hectic for me, and now like when I have reached some एक पॉइंट पे मैं आया हूँ, तो सिविल सर्विस के बारे में सर बहुत ज्यादा नहीं सोचा है, but like I will definitely want to give time to think about it, क्योंकि because for me actually it is important that when I am deciding for some exam ना, so मैं पहले से इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाऊं। क्योंकि अगर बीच में मैं मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा एफर्ट मांग रहा है, यार ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क मांग रहा है, उसका कोई सेंस नहीं है बीच में। इन द मिडिल दैट इज, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि आप कितना करना है, हाँ उससे ज्यादा ही आएगा इनफैक्ट आपको प्रेशर और आपके साथ प्रॉब्लम। तो अभी पहले लाइक आई जस्ट वांट टू गिव अ थॉट कि मुझे करना है और कैसे कितना करना है। मैंने अभी तक ऐसा नहीं है कि बहुत सोचा है इसके बारे में, हाँ, बट लाइक आई वुड डेफिनेटली वांट टू गिव दिस थॉट कि मुझे जाना चाहिए उसके लिए, नहीं जाना चाहिए। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज तेरा इकोनॉमिक्स का ऑप्शनल तो वैसे ही बना ही पड़ा है पूरा का पूरा ऑलमोस्ट। राइट। सो यू जस्ट नीड टू वर्क फॉर जीएस पार्ट यस। उस। एंड विल इज पीएचडी इन माइंड और व्हाट? नो। सर पीएचडी नॉट इन माय माइंड। अच्छी बात है। आई मीन देयर आर वेरी फ्यू पीपल, बिकॉज जनरली व्हेन आई आस्क देम फॉर पीएचडी, सो मोस्टली पीपल से कि हाँ हमको पीएचडी करनी है। ऑल्दो यू गाइस सर गेट स्टडी आल्सो फॉर दैट। हाँ सर, बाद में अगर कोई ऐसा मौका आता तो वो देखने वाली बात है, पर मेरे माइंड में नहीं है पीएचडी का होता तो सर आई थिंक डीएससी के बाद यू शुड गो फॉर वाह, पीएचडी हाँ। डायरेक्टली। हम्म। डायरेक्टली आपको 2-3 साल बाद उसको करने का मुझे लगता है बहुत ज्यादा सेंस बनता है आपको, तभी डीएससी के साथ ही करनी चाहिए, डीएससी के बाद एग्जैक्टली डायरेक्टली। लेकिन टी स्कूल में भी आई हैव सीन इवन मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो। मैं ये पीएचडी का इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज देयर इज समथिंग व्हिच इज लेफ्ट विद इन मी आल्सो। राइट। यस सर। करना है एंड आई कुड नॉट डू इट, दैट अब इस एज में अब कोई मतलब नहीं है। बट सर कर व्हेन आई, सकते हो सर आप हाँ, आपको हाँ, करनी चाहिए सर। हाँ, मुझे अब तो बहुत मन करता है, लेकिन पता नहीं उस समय, आई सर मीन यू एज नो, का तो कोई फैक्टर नहीं है सर, यू आर स्टिल वेरी यंग सर। आई आई सब थिंक कोई सा यंग नहीं हो, मैंने आई एम जस्ट तो पढ़ाइयों का पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो ना एक साथ ही खत्म हो जानी चाहिए। हाँ वो एग्जैक्टली बहुत सर। साल अगर कर लो ना काम, उसके बाद देर इज वेरी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक राइट टू राइट। स्टडी। चल, एनीवेज, congrats once again, and thanks for this discussion. I think it will be useful to people. चल, थैंक यू बेटा। चल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। bye.